Hello, good evening and assalamu alaikum. You are watching Sports Tonight. मैं हूँ रोहान नदीम. We are back with another fresh episode. This one is going to be focusing on cricket. You guessed it right. बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में. पाकिस्तान टीम की थोड़ी सी इस वक्त जो एक ब्रेक चल रही है. डिस्पाइट दिस ब्रेक यू कैन सी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो लीग्स में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं. वी नो कि बिग बैश लीग इस वक्त ऑन गोइंग है. सो प्लेंटी ऑफ आर पाकिस्तानी stars are featuring in the ongoing Big Bash League in Australia. But on the other hand, of course, Ashes की series भी ongoing है, and we will be talking about that all-important third test in tonight's show. उसके अलावा of course हम बात करेंगे PSL के हवाले से एक बहुत important update है जो कि हम आपके साथ शेयर भी करेंगे आज के शो में. But finally it looks like we're rolling ahead and we're getting closer to all of the PSL action starting. So make sure that you stay tuned with us because a lot of analysis coming up on tonight's show. I'll be joined by 3 cricket experts जिनके साथ हम आज के शो में unpack करेंगे ये सब कुछ. But before we do all of that, a quick look at the news from around the world. Chairman PCB Mohsin Naqvi announced the official window for the 11th edition of the HBL Pakistan Super League. The HBL PSL Season 11 is scheduled to take place from 26th March to 3rd May 2026. India defeated South Africa by 7 wickets in the 3rd T20I in Dharamshala, taking a 2-1 lead in the 5-match series. India's under-19 team secured a dominant 90-run victory over rivals Pakistan under-19 in a rain-affected under-19 Asia Cup group match in Dubai. The Perth Scorchers began their BBL 15 campaign with a 5-wicket win over the Sydney Sixers in a match reduced to 11 overs per side due to rain. The Hobart Hurricanes women won the Women's Big Bash League final, defeating the Perth Scorchers women by 8 wickets to secure the championship title. The third Ashes test between Australia and England is scheduled to start on Wednesday, December 17th at the Adelaide Oval. England, trailing the series 2-0, have made one change to their lineup, bringing in seamer Josh Tongue for Gus Atkinson as they aim to keep their series hopes alive. The Desert Vipers have become the first team to qualify for the DP World ILT20 2025-2026 playoffs after securing a 5-wicket victory over the Dubai Capitals in a thrilling encounter yesterday. The Pakistan women's under-19 team sealed a 3-2 series victory over Bangladesh women's under-19 team with a 6-wicket win in the final T20 match on December 12th. Well, congrats to the under-19 girls. What a victory that was against Bangladesh. And दूसरी साइड पे under-19 जो हमारे men's team है वो उतना अच्छा result नहीं ला सके. But of course the Asia Cup has just started. So wishing them well in that tournament as well. यहाँ पर एक short break लेंगे. But as I said, so much build-up coming up on the other side. Please keep watching Sports Tonight. जी वेलकम बैक. यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टनाइट एंड दिस इज़ द क्रिकेट स्पेशल. ब्रेक से पहले जैसा कि मैंने कहा आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बिल्डअप होगा. ब्रेक से पहले आपको हमने कुछ न्यूज़ हेडलाइंस भी शेयर की थी. ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बिन गोइंग ऑन एज फार एज द HBL PSL इज़ कंसर्न. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल. अपने 3 एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आज के शो में. आई एम बीइंग जॉइंड बाय स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन आजम. अस्सलाम वालेकुम हसन, ग्रेट टू हैव यू बैक. वालेकुम अस्सलाम, ऑलवेज अ प्लेजर. उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेटर अदनान अकमर. अस्सलाम वालेकुम अदनान, वेलकम बैक. अस्सलाम, कैसे जी आप? ठीक हैं?
Thank you so much for joining us, Adnan. और उनके साथ हमें आज join किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर ने. अस्सलाम वालेकुम इरफान, वेलकम बैक टू द शो. थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी. प्लेजर. आप तीनों को हमने आज दोबारा से इकट्ठा किया है, तो आप लोगों के एनालिसिस जो है वो हम ज़रूर सुनेंगे. PSL से स्टार्ट करते हैं. हसन आजम, आई एम कमिंग टू यू विद दिस वन, क्योंकि हम बहुत महीनों से इस बिल्डअप में थे कि जो अगला सीज़न है उसके ऊपर कब हम कोई अपडेट सुनेंगे as far as the possible dates are concerned. Officially now it has been revealed that 26th March till 3rd May is the official window for PSL season 11. What can you tell us about this window? पहले तो ये बताएं कि why this particular window, क्योंकि earlier editions जो होते रहे except for the one जो last year हुआ वो earlier in the year होते थे, मतलब around February, which meant कि दिसंबर में हमारा ड्राफ्ट भी होता था. बट ये थोड़ी सी विंडो आगे पुश होती हुई नजर आई है. व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट दिस? I think because of the past couple of years ये एक चीज़ प्री प्लान्ड थी, मतलब इट वाज ऑन द होराइजन कि ऐसा ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था, तो गिवन दैट वो विंडो आगे चली गई. और इस साल भी पता था कि अब वर्ल्ड कप T20 आने वाला है, तो पीपल न्यू कि ये विंडो मार्च अप्रैल मई इसी के दरमियान में होनी है, एंड इट्स गोना कोलाइड विद द IPL. उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. फ़ायदे ये हैं आपको कि जो प्लेयर्स बिग प्लेयर्स IPL में अगर इनिशियली पिक नहीं होते, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू द PSL एज वेल. तो आपका जो स्टार पूल है वो बढ़ता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ दोज प्लेयर्स they either commit to the IPL, फिर they don't go into a season before the IPL as well. फाफ टू प्लेसी ने ऑलरेडी इस बात को अनाउंस भी कर दिया था. इसके साथ साथ और भी प्लेयर्स हैं जो कि IPL में फीचर नहीं करेंगे और PSL में करेंगे. Absolutely. और दूसरी तरफ आपको ये भी इस दफा तो इतना रीजिग होने वाला है सब कुछ रोहा जी, बिकॉज नॉट जस्ट के आपने अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2 टीमें आएंगी, 2 टीमें आने के बाद आपने ये अनाउंस करना है कि रिटेंशंस क्या होंगी पर फ्रेंचाइज. फिर आप ये अनाउंस करेंगे कि जो 2 नई टीमें आ रही हैं उन्हें उस रिटेंशन के इक्वल होने के लिए क्या प्लेटफॉर्म दिया जाएगा. क्या वो पूल में से जब कैटेगरीज डिसाइड हो जाती हैं फ्री विली निली अपनी पिक्स करेंगे, या पहली 3 पिक्स उन्हें ड्राफ्ट में दी जाएंगी. प्लस द ड्राफ्ट इटसेल्फ इज देयर इज गोना बी समथिंग डिफरेंट अबाउट इट, बिकॉज हम देखते आए कि आपको प्लेयर पर्स मिलता है, फिर आपको बता दिया जाता है कि प्लैटिनम डायमंड गोल्ड से इतने प्लेयर्स आपके पिक होंगे, और आपकी नंबरिंग हो जाती है कब पिक्स होंगे. Maybe you'll get to see an auction this year, and which is going to be another thing which is going to reignite that PSL fervor in the Pakistani nation and the world across as a whole. Well, that would be interesting, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी बात हो चुकी है कि PSL का जो ड्राफ्ट है should it move to an auction model or not, तो इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा. बट अदनान, इतने अब 2 टीम्स जब नहीं ऐड होंगी तो उससे ज़ाहिर है अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी प्लेयर्स के लिए टू गेट पिक्ड, क्योंकि अभी 10 सालों में हम ये भी देखते रहे हैं कि काफ़ी ऐसे डिजर्विंग प्लेयर्स जो कि या तो पिक ही नहीं होते थे या पिक हो के बेंच पे अपना सीज़न गुजार रहे होते थे और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाती थी. ये 2 नई टीम्स के ऐड होने की वजह से जो पाकिस्तान का प्लेयर्स का जो पूल है उनको कितना फ़ायदा होगा? देखें, अगर PSL की बात करें तो आपकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि जो बेंच पे लड़के बैठे होते थे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. ये 2 टीमें ऐड करने से उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और फिर दूसरा ये है कि प्लेयर्स के पास चांसेस भी, जैसे जिन्होंने इस साल परफॉर्म किया है, जैसे बहुत से लड़के ऐसे हैं जो न्यू फेसिस आने वाले हैं PSL में. 2 टीमें जब बनेंगी तो ड्राफ्टिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें भी अप एंड डाउन आएगा. क्या 2 टीमों को थोड़ा रिलैक्स करके उनको पिक दी जाएगी. फिर दूसरी तरफ आपने बात की कि अगर आगे जाने की विंडो जो PSL की वो ये भी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी प्लेयर वो कहीं ना कहीं बिजी है. तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या PSL की जो भी मैनेजमेंट उन्होंने इसी वजह से शायद आगे किया कि हमारे पास मैक्सिमम प्लेयर इंटरनेशनल पे अवेलेबल हो. और फिर 2 टीमें जो बननी है उसके साथ भी प्लेयर मर्ज होने हैं, यंगस्टर भी होने हैं और इंटरनेशनल भी होने हैं. तो शायद इसी वजह से विंडो जो है वो आगे लेके गया है PSL की. चलो, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. अभी कुछ ऑफिशियल हमें कंफर्मेशन नहीं आई है कि 2 नई टीम्स कौन सी होंगी. बट इरफान, अगर आप भी थोड़ा सा हमें शेयर कर सके, जितनी इन्फॉर्मेशन और इंटेल आपके पास है, कोई नाम ऐसे हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आ रहे हैं कि ये 2 टीम्स में से 1-2 नाम आप अगर शेयर कर सकें? मेरा ख्याल है ये सॉरी दैट विल बी क्वाइट अर्ली टू से, लेकिन लग यही रहा है कि सियालकोट की तरफ से भी हमें कुछ रूमर सुनने को आ रहे हैं और फैसलाबाद का भी था. बट मुझे लगता है कि शायद आप जब ऑक्शन में जा रहे हैं थोड़ा सा आप इसको नहास करना चाह रहे हैं, और दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपने अभी एक रोड शो यूके में किया, अभी कल हमने न्यूयॉर्क में देखा, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ल्योर कर रहे हैं मैक्सिमम पीपल को कि आपकी तरफ आए, ऑक्शन में आए, बिडिंग में आए, ताकि आपका जो टारगेट है कि हम इसे नंबर 1 लीग बनाना चाह रहे हैं.
جیسے آپ نے شروع میں مینشن کیا کہ بڑے نام آ رہے ہیں, معین علی آ رہے ہیں, فیف ڈو پلیسی آ رہا ہے, میکسویل آ رہے ہیں. کچھ لوگ تو اب اوبیسلی ہمارے جو نیبر ہیں وہ جو بات کرتے ہیں کہ شاید یہ تو ریٹائرڈ پلیئر ہیں یا شاید ان کا وہ انہوں نے پک نہیں ہونا تھا آئی پی ایل میں. تو بٹ یہ ٹینڈنسی آپ کو شو کرتی ہے کہ یہ لیگ بھی اپنی ایک ریپوٹیشن بنا رہی ہے. ان ٹرمز آف بالنگ تو ہم نمبر 1 تھے, اب بیٹنگ کے طور پہ بھی ہم نے کہیں نہ کہیں کرنا ہے. دوسری آپ نے بڑی پرٹیننٹ بات کی کہ ہمارا ایک بہت بڑا پول تھا لڑکوں کا, ہمیشہ 10-12 لڑکے ایسے ضرور ہوتے تھے جن پہ ہم بات کرتے تھے کہ یہ شاید کھیلنا چاہیے. انڈر 19 کے 2-3 لڑکے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا وہ نہیں کھیلے. اسی طرح کچھ ایکس کرکٹرز ہمارے ایسے ہیں جو بیچارے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کھیل پائے. کیونکہ کوئی بھی لیگ آئی بلیو بڑی تب ہوتی ہے جب آپ کے اپنے لوگ اس میں کھیلتے ہیں, وہ پرفارم کرتے ہیں. کبھی بھی آئی پی ایل میں آپ یہ نہیں کہیں گے یا کسی بھی اور بگ بیش میں جی میکسویل نے پرفارم کر دیا, وارنر نے پرفارم کر دیا, آپ مطلب انہوں نے کیا تو آپ اس سے بڑے ہوں گے. اسی طرح پاکستان میں بھی رضوان کرتا ہے, بابر کرتے ہیں, شاداب کریں گے. کوئی بھی پاکستانی پلیئر جب پرفارم کرے گا تو لیگ کو پھر آپ لارجر دین لائف یا بڑا بنانے کی بات کرتے ہیں. دوسرا آپ نے جو بات کی کہ جو ونڈو تھی, ونڈو اوبیسلی ورلڈ کپ کے بعد آپ کے پاس یہی ملتی ہے. ہمارا یہ ونٹر چلتا ہے تو اس میں تو ہم کروا بھی نہیں سکتے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ 4-5 لیگ تو ابھی چل رہی ہیں کسی وجہ سے کہ ان کا جو کلائمیٹ ہے, جو ویدر ہے وہ سوٹ کرتا ہے سم ہاؤ اس کو. آئی سی سی بھی پھر 2 ونڈو دیتا ہے, پاکستان اور انڈیا کو ایک ساتھ دیتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے پول میں نہیں آنا, ہمارے پلیئر نے ادھر نہیں جانا, اور اوبیسلی وہ ایک پک اینڈ چوز والی چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت آئیڈیل ویدر ہے تاکہ آپ کے فینس بھی جب میکسیمم اس کو دیکھنے آئے. ایک اور آرگیومنٹ ہے against the addition of 2 teams, یا maybe some people who like to argue the other side کہ will it affect the quality of the competition. کیونکہ ظاہر ہے ابھی تک 6 ٹیمز کے ساتھ you could tightly control the standard of cricket being played. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2 نئی ٹیمز کے آنے کی وجہ سے at least in the initial years for a while شاید کوالٹی تھوڑی سی افیکٹ ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے انہینس ہوگی کوالٹی؟ I think that's a very good question. Initially, I think it will get affected کیونکہ it's just clear logic کہ اگر آپ کے پاس بیسٹ پول آف پلیئرز ہیں اور انہوں نے 6 ٹیموں کے اندر ہی کسی طرح ایڈجسٹ ہونا ہے اور وہ پھر آپ کو نمبر آف اپرچونیٹیز بڑھا کے 8 ہو جائیں, اور پھر وہ جو آپ کا ایک اسپیشل پول بنتا ہے, ہم دیکھتے ہیں پچھلے 10 سالوں میں ہر فرینچائز کا نا ایک کور گروپ رہا ہے 4-5 پلیئروں کا, اس کے گرد جو ہے وہ پلیئر شفل ہوتے رہیں, تو وہ کور گروپ بھی ڈسٹرب ہوگا ڈیفینیٹلی کیونکہ اب ریجگ ہوں گی ساری سائڈس. ابھی ہمیں کنفرمیشن تو نہیں آئی, کیا 3 ریٹینشنز are we looking at 3 per franchise? Is that what we can expect? I mean that's one of the figures that has been discussed, but Okay. it's not finalized yet. یہ ابھی اس کو کریں گے وہ. یہ ابھی figure finalize ہونا ہے, but جب But what do you think should be a fair number کہ per franchise to maintain that level of quality and competition and at the same time ensure کہ سب کو ایک تھوڑا fair run ملے؟ I think as a franchise you would always want کہ آپ کے 5 تو کم از کم آپ کا منیمم ریٹینشن والے نمبر ہوں. آئی ایم شیور ہر فرینچائز کوئی آئی ایم شیور فرینچائزز ایسی بھی ہوں گی جو کہیں گے ہمیں 8 دے دیں کیونکہ دے ول آلویز بی سیلفش اباؤٹ کیپنگ دیٹ کور گروپ ٹوگیدر. بٹ آئی تھنک 3 از اے نمبر وچ فرینچائزز کین ورک ود. آئی تھنک اٹس ناٹ اے بیڈ نمبر, بٹ آئیڈیلی آئی وڈ سے 5. اور جہاں آپ نے بات کی کہ لیکن جب ایڈیشن ہوتی ہے نا اس کے اور بھی جو نیگیٹو یا ڈرا بیکس کی ہم بات کریں گے یار پی ایس ایل آنے سے اور کیا فرق. ایک یہ بھی آرگیومنٹ ہے کہ جو آپ کے اسپانسرشپ پول ہے جو وہ پہلے 6 ٹیموں میں ڈیوائڈ ہو رہا تھا وہی پول 8 میں ہوگا, تو ڈو فرینچائزز ریئلی بینیفٹ فرام دس, یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے. بٹ آپ یہ جس طرح روڈ شوز دیکھ رہے ہیں, پوائنٹ اس کہ آپ پی ایس ایل کو زیادہ آئی بالس کے سامنے لے کر جا رہے ہیں اینڈ یو ٹرائنگ ٹو گیٹ مور پیپل انوالوڈ وچ از اے گڈ تھنگ ٹو ٹرائی اینڈ انکریز دیٹ پول فار اسپانسرز. جہاں تک پلیئرز کی بات ہے آئی تھنک انیشیلی مے بی اٹ ول ٹیک اے ایئر اور 2, بٹ ان دا لانگ رن دس از آئی پرسنلی بلیو دیٹ کہ یہ بہتر ہے پی ایس ایل کے لیے, کیونکہ جب آپ کی ٹیمیں ایڈ ہوں گی آپ کے لوکل پلیئرز کو وہ اپرچونٹی ملے گی, جب آپ کے انڈیجنس پلیئرز جو لوکل پلیئرز ہیں ان کو ہائی پریشر مومنٹس میں پرفارم کرنے کا موقع ملے گا, دیٹ ول ایونچولی ہیلپ یور نیشنل سائڈ اینڈ دیٹ ول ایونچولی ہیلپ پی ایس ایل ایز ویل. آئی تھنک دیر از a lot to look forward to there. Of course, plenty of talent is at display in every year. PSL میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم نے کچھ بہت بڑے بڑے اسٹارز بھی ہیں جو کہ پی ایس ایل کے تھرو پاکستان ٹیم کو ملے ہیں, اور فرینچائزز جو ہیں وہ بہت زبردست کام کرتی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر ٹو انشور کہ جو پلیئرز فیچر ہو رہے ہیں ایوری ایڈیشن وہ پاکستان کو بھی سرو کرے, ان کو فرینچائز کو بھی سرو کرے. ون آف دوز نیمز از آف کورس شاہین شاہ افریدی, جو کہ ناٹ وہ پی ایس ایل کے تھرو ڈسکور تو نہیں ہوئے تھے لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم, ایک لانچنگ پیڈ مل گیا تھا.
not having a great time at the BBL, the ODI captain. I think थोड़ा सा उनका जो debut है वो underwhelming रहा है अदनान. नॉट गुड फॉर पाकिस्तान. देखें आपका जो एक मोस्ट सीनियर बॉलर है पाकिस्तान की टीम का कैप्टन भी, और इस तरह तीसरे ओवर में आके उस तरह फुल टॉस कर देना, शायद वो यॉर्कर करना चाह रहे थे, एक दफ़ा बॉल हाथ से स्लिप हो गया उसके, शायद फिर दूसरी दफ़ा ट्राई आउट करने गए, वो भी फुल टॉस हो गया. तो कहीं ना कहीं ये बहुत, देखें अंपायर्स हमेशा सेफ साइड देखते हैं कि बैट्समैन इंजर्ड ना हो, तो वो शायद वो करना चाह रहे थे कोई ट्राई आउट, तो वो फुल टॉस हो गए. पर इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान के इस तरह के जो हमारा सीनियर बॉलर है वो इस तरह के नो बॉल करेगा तो अच्छा नहीं है. It can be tricky for some bowlers to at the start जब figure आप out. बहुत ज़्यादा जोर लगाने जाते हैं ना तो ये हैपेंड होता है. वो मेरे ख्याल से वो करना चाह रहे क्योंकि बॉल अच्छा बाउंस हो रहा था, लास्ट ओवर चल रहे थे, और देखें वो उसके बॉलिंग ना करने की वजह से नो बॉल पे एक्स्ट्रा रन्स भी मिले और उससे बॉल भी ले लिया, और कहीं ना कहीं सिडनी जो है वो शायद वो 12 से 10 रन से मैच हार गया. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि लास्ट ओवर में आउट भी करता और रन्स भी रुकते, और 198 पे वो आउट हो गए जो शाहीन की टीम थी. अगर वो कर लेते तो शायद डिफरेंट होता. इरफान, a number of Pakistani stars are featuring in the BBL. हमने शाहीन की बात की, उसके अलावा सबके फेवरेट बाबर आजम भी फीचर कर रहे हैं. हारिस रऊफ जो कि BBL अपने इंटरनेशनल डेब्यू से पहले ही वो BBL खेल चुके थे, बड़ा उनका गहरा और पुराना ताल्लुक है. शादाब खान, रिजवान हसन अली, ये कुछ और नाम है. कितना बेनिफिट होगा इन प्लेयर्स को BBL में फीचर करके? कुछ की इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको ज़रूरत है उस एक वैलिडेशन की कि हाँ हम अभी भी T20 के स्टार्स हैं. देखें इंटायरली तो नहीं आप उस पर कर सकते डिपेंडेंट, बट सम हाउ इट मेक्स ए डिफरेंट, क्रिएट्स अ डिफरेंस फॉर द प्लेयर एज वेल. सबसे ज़्यादा शादाब के लिए आई गेस, अगर वो सोच रहे हैं या थिंक टैंक सोच रही है कि ही वुड बी द पार्ट ऑफ द टीम, तो उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. हाँ, ये डिबेट ज़रूर कर सकते हैं कि श्रीलंका की डायमेंशन और उधर की डायमेंशन में बहुत डिफरेंस है. उधर तो फुल हिट भी कई दफ़ा बाउंड्री पे कैच हो जाता है और इधर आपकी मिस हिट भी श्रीलंका में छक्का हो जाता है. तो बट शादाब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. दूसरा, मैं कल देख रहा था जैसा बाबर ओपन पे आए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एज ए प्लेयर भी आपको बात करनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ. दो कि फ्रेंचाइजी शायद नहीं सुनती, उनके एक अपने स्टेक्स होते हैं, अपना उनका क्राइटेरिया होता है. अब पाकिस्तान टीम में बाबर इज नोइंग दैट फैक्ट कि उन्होंने नंबर 3 पे खेलना है और इधर वो ओपन कर रहे हैं, जो ओपन वो करते आए हैं पास्ट में. बट आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट के अंदर वो प्रिपरेशन भी तो करनी है ना, जो आप आगे इंटरनेशनल क्रिकेट को आपने कैरी फॉरवर्ड करना है. तो मुझे लगता है कि बाबर का वो रोल भी हमें देखना चाहिए. इसी तरह शाहीन का डेथ ओवर का जो मसला है वो लास्ट 2-3 ईयर से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का एक्सपेंसिव होता जा रहा है. शायद इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी सबसे एक्सपेंसिव बॉलर है वो दुनिया में, तो उसको उनको हेल्प मिल सकती है. तो बेनिफिशियल तो बहुत है. रिजवान मुझे नहीं लगता कि वो आपका पार्ट हो सकते हैं, शायद कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर लें. जैसे लास्ट आपको याद होगा फ़हीम अशरफ और नवाज की BBL की परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम में आ गए थे. तो एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान, वो तो कुछ भी नहीं हो सकता. बट लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन प्लेयरों को ये बात अपनी मैनेजमेंट से करनी चाहिए फ्रेंचाइज के साथ कि हमारा जो इंटरनेशनल रोल है उसको भी लेके चले, ताकि कोहेरेंस हो दोनों में, आपकी परफॉर्मेंस के अंदर और टीम के अंदर भी. And of course, some of these players might be coming back to Pakistan to represent Pakistan against Sri Lanka. अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं आई है, बट सुनने में यही आ रहा है कि शायद कुछ प्लेयर्स जो कि नेशनल टीम का हिस्सा हैं वो वापस आ जाएंगे ड्यूरिंग BBL. जी I just wanted to add this. देखें ये जो BBL ने इन्वेस्ट किया ना आपके प्लेयर्स में, और उन्होंने बाबरिस्तान को एक पूरा फैन बना के जगह उसको लॉन्च किया, उसको एडवर्टाइज किया, दैट इज अ बिग इंडिकेटर ऑफ कि पाकिस्तानी क्रिकेट ऑडियंस और इसका डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड कितनी बड़ी वैल्यू रखता है फॉर अ लीग, मे इट बी एन ऑस्ट्रेलियन लीग और एन एनी अदर लीग इन द वर्ल्ड. दैट टेल्स यू कि आपके प्लेयर्स की स्टार पावर क्या है, और वो पुल एक पाकिस्तानी मार्केट जो मिस कर रही थी, कंप्लीटली साइड पे हो चुकी थी BBL से, उसको उन्होंने वापस खींचा है. Why I'm saying this is कि when the IPL then the PSL and these journeys started ना, तो PSL टक्कर पे था IPL के, मतलब दुनिया में सारे प्लेयर्स कहते थे कि आप सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड हो. विद टाइम थोड़ा सा हमारा गैप बढ़ गया. दिस इज अनदर इंडिकेशन कि हमें बाहर वाले या जो बाहर के मुल्क के लोग या लीग्स हैं वो हमारे प्लेयर्स को और हमारे फैंस को कैसे वैल्यू करते हैं. दैट इज द रीजन आई बिलीव दैट PSL हैज सो मच पोटेंशियल कि आप अपनी लीग को जब इंप्रूव करते जाएंगे और उसकी वैल्यू खुद बनाएंगे, तो आपको तो BBL जैसी लीग बता रही है कि आपके प्लेयर्स और फैंस की क्या वैल्यू है. राइट. अदनान, आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? BBL में पाकिस्तान के स्टार्स जो फीचर कर रहे हैं,
वर्ल्ड कप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट तैयारी है। हमने बाबर के इरफान ने मेंशन किया ना कि क्योंकि वो नंबर 3 पे खेल रहे हैं तो उनको शायद उस नंबर पे कॉन्फिडेंस मिले। साथ साथ हारिस रऊफ इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट पाकिस्तान की टीम के साथ, वो काफ़ी सालों से हैं, लेकिन कई लोग अभी भी उनको ये समझते हैं कि वो मैच विनर नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ फैंस, ऑफ कोर्स ही इज़ अ पॉपुलर बॉलर, बट देयर आर स्टिल पीपल हु आल्सो थिंक कि हारिस रऊफ हमें मैचेस नहीं जितवाते। क्या आप एग्री करते हैं? क्योंकि ये BBL में जब वो खेलते हैं तो उनको देखने के लिए लोग आते हैं। देखें, अगर मैं बाबर की बात करूं, शाहीन की बात करूं, या आपने हारिस की बात की, देखें बात बिल्कुल सही है कि देखें अगर आप इंटरनेशनल जो पाकिस्तान टीम से किस नंबर पे बारी ले रहे हैं, आपको फिर जहाँ पे भी क्रिकेट खेलनी उसी नंबर पे जाके खेलना है। क्योंकि क्या होता है कि आप ओपन कर रहे हैं, सडनली पाकिस्तान टीम में आते हैं तो नंबर 3 खेलते हैं, तो थोड़ा सा जब अपनी टीम आता है से खेल रहे हैं उनके अपने भी तो थोड़े देखें game हमेशा strategies होती हैं। हमेशा चीज़ें चेंज नहीं करनी चाहिए। जो आपको सूट करे, जो आपकी टीम डिमांड करती है, आप उसी नंबर पे जाके खेलें। वो ऊपर दूसरी बात, हम शाहीन की बात करें तो शाहीन एक्सपेंसिव बॉलर है। T20 में बहुत ज़्यादा रन, 43 रन दिए हैं उसने कल मैच में जो खेला गया, जिसमें नो बॉल किया है। उसके बाद अगर हारिस की बात करें तो देखें पेस के साथ अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है ना, तो फिर आपको स्पीड से अब डरने वाले बैटर नहीं है। जितनी स्पीड उनको चलती, जितनी बैट स्पीड उनकी आजकल के प्लेयरों की है, बैटर्स की हैं, तो इजीली कनेक्ट हो जाता है। आपके पास वेरिएशन चाहिए, वो शाहीन को भी चाहिए वेरिएशन और हारिस को भी चाहिए। अगर ये वेरिएशन नहीं लेकर आएंगे तो इसी तरह ही T20 में एक्सपेंसिव बॉलर रहेंगे और मैच नहीं जितवा सकेंगे। शायद आपके ऊपर मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूँगी। डू यू थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर हिम? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको देखना चाहते हैं टीम में, एंड श्रीलंका में जैसी कंडीशंस होंगी शादाब खान could play that vital role. Of course उनकी form at least with the ball has struggled for a while, but now he is getting back in form. Injury जो है वो थोड़ी उनकी unfortunate रहती है, but do you think he now deserves a place for that World Cup? I think he was always meant to be a part of that squad for the World Cup and still is. उसकी वजह ये है कि जिस तरह का इन्होंने PSL में परफॉर्मेंस दी, थोड़ा कुछ मैचेस उन्होंने रेस्ट किया जब वो सर्टन इंजरी का मसला शुरू हुआ, फिर उन्होंने बांग्लादेश की सीरीज खेली होम पे, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच थे और अच्छी डिसेंट सीरीज गुजरी उनकी। उसके बाद वो चले गए अपनी सर्जरी और रिहैब की तरफ। तो अगर पाकिस्तानी टीम देखती है शादाब खान को एज अ मैच विनर, जो कि इस वक्त आपकी जो मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस वन एज अ मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस एज द प्लेयर ऑफ द मैच फॉर पाकिस्तान, वो टॉप कर रहे हैं उस लिस्ट में। तो देयर इज नो नीड टू प्रूव दैट ही कैन विन यू मैचेस, बट ऑन फॉर्म, ऑन एबिलिटी, वुड यू रिप्लेस हिम विद समबडी? उनके लिए ये टूर्नामेंट जिस तरह आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही वांट्स टू फील दैट हिमसेल्फ बिफोर एवरीबडी एल्स pitches in कि हाँ यार, आई एम बैक टू वेयर आई वांट टू बी एंड आई एम रेयरिंग टू गो फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ की आपने थोड़ी देर पहले बात की, आई थिंक यही सवाल रह गए हैं अब दो। एक सवाल यह है कि शादाब खान अगर इस स्क्वाड फाइनल 15 का हिस्सा बनते हैं एंड ही गोज टू श्रीलंका, हु विल यू सेट आउट? और मुझे जो भी सिर्फ नजर आ रहा है who somebody they could replace, and I might be wrong, is Hassan Nawaz। ठीक है, जो अभी क्योंकि आप स्क्वाड में और किसको रिप्लेस चले हम अभी स्क्वाड की भी इन डेप्थ बात करेंगे। हमने अभी मजीद भी डिस्कशन करनी है वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स के ऊपर और कौन से क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि एज वी नो जस्ट 6 मैचेस बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, सो नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। पाकिस्तान के पास अब 2 सीरीज़ रह गई हैं टू मेक श्योर कि सारे एरियाज चेक हैं, सारे बेसिस कवर्ड हैं, all our games are going to be played in Colombo. So how will that be? How easy will that be, or will that be another challenge? इसके बारे में भी हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, but when we come back we have lots in store, especially as far as the World Cup is concerned. मैं अपने एक्सपर्ट से भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगी और आप लोग भी प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। यू आर वॉचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट। जी, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट एंड दिस इज़ द क्रिकेट स्पेशल। ब्रेक से पहले थोड़ा सा हमने टच किया था वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के ऊपर, क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही देर बाकी है, कुछ ही वीक्स बाकी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड दिस इज़ बिफोर द वर्ल्ड कप, वेयर एवरी टीम इज़ काइंड ऑफ ट्राइंग देयर बेस्ट टू check all of their boxes, see what the combinations look like and make sure के conditions के मुताबिक जो है आपकी selection finalized हो। सलमान अली आगा ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि देयर विल मोस्ट लाइकली नॉट बी एनी ड्रास्टिक चेंजेस टू दिस करंट T20 साइड, विच मीन्स कि पाकिस्तान को ऑलरेडी कॉम्बिनेशन का मोर और लेस पता है।
Hassan Azam, let's talk about that top order. I mean, a little confusion there as far as, so we know Sahibzada Farhan, Saim Ayub, and then Babar Azam coming in at 3. लेकिन where does that leave someone like Fakhar Zaman? हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है कि क्या आप उन्हें टॉप 3 या टॉप 4 में फिट करेंगे या कि आप उन्हें मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी देंगे, स्पेशली अगर हसन नवाज भी अब नहीं है. क्या आप उनको एज अ पावर हिटर एट द एंड ऑफ द इनिंग्स भेजेंगे? आपके नज़दीक क्या थिंकिंग इस वक्त माइक हैसन और उनके थिंक टैंक की चल रही है? I think पहली चीज़ तो ये है कि we are lucky enough to have somebody like Fakhar who can bat in so many different positions and still do a great job. जहाँ तक आपने ओपनिंग पोजीशंस की बात की, आप जनरली टूर्नामेंट में ना 3 ओपनर्स लेके जाते हो. you'd feel like यार इन तीनों में से मेरे 2 प्लेयर ओपन करेंगे and that is settled for you. तीसरे फ़खर हैं. उसके अलावा फ़खर को किस तरह आपने यूटिलाइज करना है कि आपने जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया कि लोअर ऑर्डर हिटर में यू नीडेड समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड who could take that responsibility on his shoulders and read the match situation and play accordingly. Fakhar can do that again. तो मुझे लगता है उनका रोल यही होगा. अगर वो टीम में खेलते हैं तो वो या तो किसी ओपनर को रिप्लेस करके खेलेंगे. अगर वो दोनों ओपनर आपके फिट हैं, they're ready to go, which most likely hopefully is the case, then he'll be somebody who comes into that lower middle order. क्योंकि 4 पे आगा खेलते हैं, उस्मान खान 5, and then if you're Fakhar in the side, ये जो 3 पोजीशंस है 4, 5, 6, इनमें ही आपको ये 3 प्लेयर ही मिलेंगे. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बो रखना है तो कौन आएगा, या कौन सा पर्टिकुलर बॉलर लगा हुआ है तो कौन आएगा. बट मुझे ये लगता है दूसरी तरफ आई थिंक इफ यू टॉकिंग अबाउट शदाब कमिंग बैक इनटू द साइड, दैट्स द ओनली चेंज आई सी कि आप देन hypothetically speaking you would have to put somebody like Fakhar on the bench, bring in somebody like Shadab. If you do that, फिर क्योंकि आप अभी तो नवाज और फहीम को आप एक बड़ा मैच विनर है उस साइड से फखर नहीं जमान, करेंगे. उनको भी हम अगर देखिए बेंच करने वो भी वर्ल्ड कप में. लेट मी गिव यू एन आर्गुमेंट. कंट्रोवर्शियल बात कर दी हसन. नहीं वो थोड़ी सी होनी भी चाहिए. द आर्गुमेंट इज कि आपने बाबर को टीम से ड्रॉप किया, बाबर को आपने एक टारगेट दिया जो आपका नैरेटिव आता रहा कि आपने ये करना है, अपने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करना है. मुझे बताएं बाबर ने स्ट्राइक रेट को कहां पे इंप्रूव करके शो कराया? ही इज बैक इन द साइड. रीजन इज कि हमें पता है बाबर का पोटेंशियल क्या है. बाबर भी तैयारी करके आया. मैनेजमेंट, आई एम श्योर सलमान अली अगन, ऑल दिस पीपल हैव डिस्कस्ड दिस कि बाबर का इस टीम में क्या रोल होगा, हाउ विल ही गो ऑन टू प्ले दैट. सेम थिंग अप्लाइज टू शदाब खान. Why are we thinking that if Babar can come into the side on the potential, Shadab has to prove something to come into that side because he's proven that through the number of man of the matches he's won for your team. हाँ, Pakistan comes first, bhai. Shadab, if he's ready, fit, raring to go, that is an honest conversation everybody will have. Then he comes into the side. If there is even 19-20, 18-20 wala मामला है, you'd rather go with somebody who you bank on कि you know he'll get through the World Cup, you know, the way we want him to. चले back to the top order debate. I get your point about Shadab Khan and we'll come back to that. लेकिन अभी क्योंकि हम फ़खर ज़मान की बात कर रहे हैं, हम जब इस टीम को देखते हैं अदनान, हम जब देखते हैं कि अच्छा ये लाइकली कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक या 2 बिल्कुल गिनती के नाम ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये मैच विनर्स हैं पाकिस्तान के लिए. ऑफ कोर्स अ वेरी एक्साइटिंग, वेरी टैलेंटेड टीम, नो डाउट्स अबाउट दैट, बट on the global stage many of these players are yet to prove that they're match winners. फ़खर ज़मान को आप इस टीम में कहाँ पे बैटिंग करते हुए देखते हैं आइडियली? क्या आपको लगता है कि उनको ओपन कराना चाहिए, क्या आपको लगता है कि उनको थोड़ा सा लेटर ऑन इन द मैच आना चाहिए? देखें, फ़खर की बैटिंग की अगर स्किल्स की बात करें तो वो हमेशा न्यू बॉल खेलें. उसके बाद अगर टीम की बात करें जहाँ पे उनको सेलेक्ट किया जाता है तो उनको डिफरेंट रोल दिए जाते थे. अब अगर वर्ल्ड कप की बात करें, दूसरी तरफ भी टीमें तैयारी करके आएगी. मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर पावर प्ले में 1-2 आउट हो जाते तो शायद ये ऊपर चला जाएगा. अगर वहाँ पे हमारा टॉप ऑर्डर साहबजादा फरहान, बाबर और सैम जो है वो खेल जाते तो फिर ये 15 ओवर के बाद बारी के लिए सूटेबल है. देखें अगर मिचेल की बात करें वर्ल्ड कप में तो वो नीचे से आके उन्होंने बढ़िया वो, क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग करता है, जिस तरह की उसकी बैट स्किल है, उसका बैट स्पीड है, तो वहाँ पे बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है. तो मोस्टली जितने भी बॉलर्स हैं वो आगे बॉल करते हैं और जहाँ पे उसका फ़खर का वो जोन जो है, उस जोन पे जब बॉल मिलता है वो फिर
ले जाता है खींच के बॉल। तो मुझे लगता है कि अगर वो ऊपर से आउट नहीं होते तो फिर ये है कि वो लास्ट 5 ओवरों में बारी लेने आएंगे और बड़े सूटेबल होंगे पाकिस्तान के लिए। 12 क्रिकेट है, देखते हैं कि मैच सिचुएशन में क्या बनती है, किस तरह उनको यूटिलाइज़ किया जाता है, किस नंबर पे खिलाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो जब टीम अनाउंस होगी, मैचेस शुरू होंगे, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या करना है, कि ओपनर को रिप्लेस करना है। बिल्कुल हसन की बात से एग्री करता हूँ। बिल्कुल हसन ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वे पाकिस्तान टीम इस वक्त इस सेंस में काफ़ी फॉर्चुनेट है कि फ़खर जमान जैसे एक वर्सेटाइल और एक फ्लेक्सिबल प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात कि वो एक टीम प्लेयर है। उन्होंने बार बार ये प्रूव किया है कि ही कैन एंड ही इज़ विलिंग टू कम इन एंड चिप इन वेयर एवर ही कैन। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ पाकिस्तान यूटिलाइज हिम एंड हिज टैलेंट्स इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप। इरफान, बहुत सारे लोगों की ना ये भी एक क्रिटिसिज्म होता है कि पाकिस्तान प्लेयर्स को जो है वो या तो बहुत जल्दी टीम में शामिल कर लेते हैं बेस्ड ऑफ ऑफ जस्ट अ फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ देयर या प्रॉमिस ऑफ देयर टैलेंट, या वंस दे आर इन द टीम तो उनको 2-3 सीरीज़ खिला के अगर वो उनको पोटेंशियल नज़र नहीं आता तो उनको वो बाहर कर देते हैं। हसन नवाज़ के बारे में हम अभी क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन, क्योंकि उनके अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी, फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ उनका नंबर क्योंकि डिस्टर्ब हुआ तो वो उस तरह से बैटिंग नहीं करे। वी नो ही इज़ अ टॉप ऑर्डर बैटर एज वेल। कहाँ देखते हैं आप हसन आजम को? डू यू थिंक कि पाकिस्तान उनके ऊपर विल दे बैक हिम फॉर द वर्ल्ड कप और शुड वी जस्ट मूव ऑन नाउ? देखिए, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ फ़खर के हवाले से ऐड करूं क्योंकि आई हैव इनसाइट, तो मैं सॉरी माय बैड इफ आई सेड हसन आजम, आई मेंट हसन नवाज। ये भी जा सकते हैं। हमें इतनी आदत हो फ्लो गई, में चलता है, फ्लो में निकल गए थे आप। हमें इतनी आदत है हमारे जो एक्सपर्ट है हसन आजम के साथ। अभी एक हसन आज कम है शो पे, वरना वो भी साथ होते हैं, but also top order. बट खैर आई मेंट हसन नवाज, वेयर इज ही एंड विल ही कम मैं बैक? पहले सिर्फ फ़खर का थोड़ा ऐड कर दूं। फ़खर ने 2022 का जो यूएई के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वो इसी नंबर पे आए थे जी। और टीम वांट्स राइट नाउ कि ये इसी नंबर पे ही बैटिंग करें। और अभी आप एक सीरीज देख चुके हैं 2, और अगली भी 2 सीरीज में आप देखेंगे फ़खर इसी नंबर पे बैटिंग करेगा। एशिया कप में क्या हुआ कि आपका नंबर 3 का स्लॉट वाज एम्प्टी, तो क्योंकि साइम की 5-6 डक आ चुकी थी तो आपका कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो आपने एक मजबूरन फोर्स आपको चेंज करना पड़ा कि आपने एज ए ओपनर फ़खर को भेजा। तो इसमें अभी जो आपका कोर है वो यही चलेगा, आपका साबदादा फरहान, साइम, बाबर, आपका कैप्टन, और देन फ़खर, और फिर छठे नंबर पे आप देखेंगे उस्मान खान होगा। ये आपका सारे मैचेस में मोस्ट लाइकली यही होगा। दूसरा जो आपने बात की टैलेंट की, जो बात करते हैं, ये हम मोहम्मद हारिस के हवाले से भी बात कर सकते हैं। देखें, क्रिकेट में आउट कोई भी किसी तरीके से हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। जितने चांसेस मेरा ख्याल है हमने साइम अयूब को दिए, हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता, बट उसका टैलेंट नज़र आता था, उसकी एग्जीक्यूशन नज़र आती थी, उसकी एफर्ट नज़र आती थी। इन दोनों प्लेयर का मसला थोड़ा ये नज़र आ रहा है कि ये गेम अवेयरनेस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की लैक कर रहे हैं। टैलेंट पे किसी को डाउट नहीं है। अब आर्गूमेंट तो जरूर आप कर सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हारिस भी कह सकता है कि मेरी तो सारी परफॉर्मेंस ओपनर के तौर पे थी, फिर मैंने नंबर 3 पे परफॉर्म किया, आपने मुझे एशिया कप ट्राई नेशन में 6, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे भेजा, तो ही हैज आर्गूमेंट। इसी तरह हसन नवाज भी आर्गूमेंट्स ये दे सकता है कि मेरी सारी परफॉर्मेंस जो थी या मेरा कैरियर था वो एज ए ओपनर था, बट आपको जब रोल दिया 5वें या 6ठे नंबर का, आपने यू हैव परफॉर्म्ड, बट क्या हुआ कि आफ्टर परफॉर्मिंग आपने कंप्लेसेंट होना शुरू कर दिया, आपने गेम सेंस छोड़ दी, आपने जिसे कहते हैं ना देखा ना मुंह उठाया और बला घुमा दिया। ये मेरा ख्याल है हमारे लड़कों में जो एक मैच्योरिटी का लेवल है, गेम अवेयरनेस का लेवल है, ये लैग करता है। बात करता हूं, इसमें मैं सिर्फ इसमें ये एक चीज मैं लास्टली ऐड करना चाहूंगा, ये इन दोनों का मसला नहीं है। अगर आप रोहा ऐड देखें ना, पिछले 10 ये एक डेकेड की क्रिकेट देखें, बाबर से आप स्टार्ट हो, रिजवान, शाहीन, किसी भी आप 11 से 20 लड़के ले ले, पाकिस्तान इज द ओनली साइड जिसका हर लड़का स्टार्ट पीक से करता है फिर डेप है। किसी की परफॉर्मेंस आप ये नहीं कह सकती कि ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। लाइकवाइज अगर आप दुनिया देखते हैं, तमाम साइड्स के प्लेयर ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस को पीक की तरफ या कंसिस्टेंट रखते हैं। इसमें हमारे सिस्टम का भी फॉल्ट है कि हमने, जैसे जो आपने बात की, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी होती है सिस्टम के अंदर। लास्ट रजीम में ये बहुत हुआ, बच्चे बेंच पे बैठे रहे, उनको नहीं चांस दिया गया, दोस्ती यारी भी चलती रही, ये सब हम सब जानते हैं। अभी भी ये कहीं ना कहीं काफी प्लेयर्स इंप्रूव भी करते हैं, जाहिर है वो अपना बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे दुनिया के, इन्होंने जो बात की उसकी हारिस की बात की, हसन नवाज की बात की, हारिस अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस से बाहर नहीं हुआ। अबाउट फॉर विकेट कीपिंग, उसकी जो विकेट कीपिंग में एरर थे ना वो बड़े कॉस्टली। वो देखिए बैटिंग में ठीक है, उसको अप एंड डाउन करते रहे, उसको डिफरेंट नंबर पे वो कह सकता है कि मैं ओपनर हूँ, मुझे मिडल ऑर्डर को भेजें, या उसको वन डाउन पे भी चांस मिला, उसको हर नंबर पे खिलाया गया, उससे नहीं परफॉर्म हुआ।
बहरहाल हम जो विकेट कीपिंग है ना, देखें विकेट कीपिंग में जिस तरह उसने एरर किया है उस तरह रन आउट नहीं किए। अब वो जो ड्रॉप हुआ है टीम से वो अपनी विकेट कीपिंग की वजह से हुआ, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद अगर हसन नवाज की बात करें तो मैनेजमेंट ने उसको फेयर चांस दिया, उसने परफॉर्म किया। उसकी जो अगर जो शॉट सिलेक्शन देखे ना, वो राइट टाइम पे राइट शॉट नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी चीज़ें उसके अगेंस्ट चली गई। फिर वहाँ पे ट्रस्ट, ऐसे जब आप शॉट खेलते हैं तो फिर आपका टीम का ट्रस्ट है ना वो आपके ऊपर बनता नहीं है। बट चले एक यंगस्टर है वो, यंगस्टर देखें, हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे बात करें हम बेहतरी के लिए करें, हम किसी को डिग्रेड नहीं करें। अगर उसमें थोड़े से अगर उसके शॉर्ट सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिस करें, कम बैक करें, उसमें टैलेंट है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान को भी जरूरत है। नो डाउट्स अबाउट दैट एट ऑल, बट डू यू एग्री विद दिस कि उनको चांसेस जो है वो सही नहीं मिले या सही नंबर पे नहीं खिलाया गया, दैट्स व्हाई हसन नवाज इज नॉट इन दिस साइड? आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। जहां तक हम नंबर की बात करते हैं तो एक बंदा अगर आते ही उसने पीएसएल में लोअर ऑर्डर जाके परफॉर्म किया, मैच विनिंग नॉक्स दिए, अपनी टीम को फाइनल में लेके गया और फिर इंटरनेशनल सीन पे उस नंबर पर आते ही एकदम छा गया। वी ऑल शुड रिमेंबर कि आज हम हसन नवाज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह आते ही उसने परफॉर्म किया था बहुत टैलेंट है उसी नंबर पे। और आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव बिकॉज हसन नवाज जैसा प्लेयर sometimes you're scratching your head thinking how can such a player be not in a World Cup side, and at the same time you're thinking कि अगर इस तरह का फ्यूचर पाकिस्तान के T20 सेटअप के लिए हसन नवाज जैसा प्लेयर है और इवन आप कहेंगे ओडीआई क्रिकेट के लिए, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन क्योंकि हम हसन नवाज को उमर अकमल एंड ऑल द लाइक्स के साथ कंपेयर करने लग गए थे। एंड इवन अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स केम आउट सेइंग कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट एंड देयर इज नो डिनाइंग दैट। पॉइंट इज कि अगर उसकी मैच्योरिटी में या वो मेंटल अवेयरनेस में, गेम सेंस में थोड़ा सा टाइम लग रहा है डेवलप करते तो लेट इट बी, बट ये कह देना कि डेवलप प्लेयर नहीं हो रहे, आई थिंक दैट्स आल्सो फॉल्स के साहिबजादा फरहान देखे कितने रगड़े खा के अब अपनी पीक उसने दिखाई है, मैच्योरिटी रीच किया है जी। बिल्कुल। हसन अली इज अनदर एग्जांपल, हसन अली इज वन ऑफ देम, बार-बार डिप आया और उसके बाद आप सलमान को देख लें, सलमान मिर्जा कहां से आया है, ठीक है, फिर अबरार की ग्रोथ देखें आप, नवाज मोहम्मद नवाज अगेन एन एक्सेप्शनल, उनका जो करियर ग्राफ रहा है, जिस तरह से वो दुनिया भर में लीग्स खेले हैं। और I just to finish off that point, I think it's about trusting the lot you have and having that, giving them a plan। जब आपकी क्लैरिटी है ना कि शदाब निकला, नवाज आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, आपने उसे कॉन्फिडेंस दिया, आपने कहा कि भाई आप ही इस जगह को फिल करोगे, एंड द वे ही डिड इट, वाओ, देखें अमेजिंग। नवाज की बात आपने बिल्कुल बात की, नवाज देखें, नवाज जिस तरह ड्रॉप हो गया था टीम से, वो नहीं लग रहा था, वो अगर वो उसकी बॉलिंग की बात करें तो अप टू मार्क नहीं थी, पर जैसे अब्दुल रहमान एनसीए में उसे ज्वाइनिंग की और स्पिनर्स के साथ अब्दुल रहमान ने काम किया तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी उसने प्लान किया नवाज के साथ। उसके बाद अगर बैटिंग की बात करें तो वो हर बॉल ट्राई आउट करता था मिड विकेट मारने के लिए। आप आज देखें वो सामने भी हिट मारता है, एक्स्ट्रा कवर पे भी मारता है, मिड विकेट पे भी मारता है, तो उसका जोन भी बैटिंग का बढ़ गया, उसके साथ भी काम किया गया है। क्योंकि अगर मैं कोचिंग स्टाफ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतरी हुई, तो नवाज जैसे प्लेयर जो है ना फिर वो छा गए क्रिकेट में, वो मेन प्लेयर बन गए T20 क्रिकेट में। तो काम करना पड़े, देखें आपके गैप होते हैं ना, गैप फिल करने के लिए आपको रेपुटेशन करनी पड़ती है, वो बॉलर हो या बैटर हो या स्पिनर हो। जब आप रेपुटेशन करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, कोचिज़ और जो प्लेयर है उनमें बॉन्डिंग होती है, तो फिर आप बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होती है। बिल्कुल। अब क्योंकि हमने बैटिंग के ऊपर भी बात की है, थोड़ा सा आई वांट टू टॉक अबाउट द लाइकली बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो पाकिस्तान जिसकी तरफ जाएगा। स्पिनर्स जो है एक बड़ा प्रॉब्लम एरिया रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ ICC टूर्नामेंट्स, जहाँ पे कंडीशंस वर रिक्वायरिंग पाकिस्तान टू हैव दैट एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन या कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर। अबरार अहमद अब ऐसे हमारे एक उनकी जगह जो है वो काफ़ी सीमेंट हो चुकी है एज दैट स्पेशलिस्ट स्पिनर। उनके साथ अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं, और ये भी कंफर्मेशंस भी नहीं है, कि हम क्या उस्मान तारिक को देख रहे हैं, क्या हम सुफियान मुकीम को देख रहे हैं। आपकी नज़र में स्पिन जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको लीड कौन से स्पिनर्स कर रहे होंगे? देखिए डेफिनेटली ये अबरार आपकी नंबर 1 चॉइस है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह उसने अपने आप को ग्रो किया है और नवाज ने जो आउटस्टैंडिंग कम बैक किया, यही हम बात करते हैं कि जब आप ट्रस्ट करें किसी प्लेयर पे तो उसको पूरा बैक करें। और जिस तरह जब उसको बैक किया गया, इवन दो कि BBL की वजह से आया था, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बट उसने अपनी जगह को सीमेंट की और बताया कि इस तरह आप क्रिकेट खेलनी है। तीसरा बॉलर का प्रॉब्लम आएगा। एक तो भी रिसेंट हमारी पास में हमने देखा कि हम 2 रेगुलर बॉलर के साथ गए ही नहीं है, स्पिनर के साथ। एशिया कप के भी बिल्कुल एंड में जाके जब बहुत मीडिया ने बात की
تو فورس چینج کر کے ہم نے دیکھا کہ 2 ریگولر اسپنر آئے تو آل 2 کے 3 کے ساتھ جانا چاہیے تھا. انڈیا تو 4 کے ساتھ بھی جا رہا تھا. تو آپ کو کنسیڈرنگ دیٹ کہ آپ نے کولمبو میں کھیلنا ہے اور ان کنڈیشن میں کھیلنا ہے, تو تیسرا اسپنر میری نظر میں اگر میرا اوپینین دیکھا جائے تو سفیان از دا بیسٹ آپشن. اس کے پاس جو رینج ہے, جس طرح وہ بالنگ کر رہا ہے, بٹ آپ نے اس کو بھی کانفیڈنس نہیں دیا, ان آؤٹ بہت ہوتے رہے. پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ فٹیگ آپ کی روٹیشن پالیسی فاسٹ بولر پہ تو ہوتی ہے, اسپنر پہ کیسے ہو سکتی ہے. عثمان طارق نے 4 آؤٹ کیے ہیں ٹرائی نیشن کے اندر, آپ کا ہیٹرک کرتا ہے, اگلا اسے 2-3 میچز میں باہر بٹھا دیتے ہیں. اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پلان کا پارٹ ہے تو آپ اس کو 2-3 میچز اور دیتے, اس کو تھوڑا سا چانس دیتے, کوئی اس کا کانفیڈنس ریسٹور ہوتا. تو یہ اسپنر کو بھی فٹیگ کیسے ہو سکتی ہے, وہ روٹیشن پالیسی میں کیسے آ سکتا ہے. بیٹر بھی آپ کا کنٹینیوسلی کھیل رہا ہے اور آپ کے کیپر بھی چلے اوبیسلی کھیل رہا ہے, تو بالرز کو اتنی روٹیشن بنتی نہیں ہے. بٹ آپ کو کیری اوبیسلی آپ کے پاس مارجن ہے, یو ہیو اے لگژری کے 15 کو لے کے جانا ہے. عثمان طارق بھی آپ کے اسکواڈ میں ہونا چاہیے, سفیان بھی ہونا چاہیے. ابرار اور نواز تو اوبیسلی آپ کی دونوں چوائس ہیں, ان دونوں میں سے آپ آلٹر کر کے دیکھ سکتے ہیں کسی نہیں, کو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 15 کی اسکواڈ جانی ہے نا, یہ 4 یہ چلے گئے تو نہیں 15 ہی بنے گے نا, 15 بھی پیچھے ڈال. پھر یہ آپ کے سارے ہو باقی- نہیں سکتے. پرابلم ہے کہ آپ نے ابھی آپ کا جو میک اپ ہے اس میں آپ کے 8 میں 3 آل راؤنڈر کھیل رہے ہیں. سائم ایوب جو آپ نے سائیڈ گنائی ود فخر ان دی سائیڈ, سائم ایوب, نواز اینڈ فہیم اشرف. تو پھر آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ میں نے 2 فاسٹ بالر کھلا کے ایک اسپیشلسٹ اسپنر کے ساتھ جانا ہے, کیونکہ آپ کی فہیم بھی تو بالر ہے نا. اگر آپ کو 2 اوور 2 فاسٹ بالر آپ کھلاؤ گے تو وہ تیسرا آپشن فہیم ہی بنے گا نا. ہاں جی, بہت ریئر ہوگا کہ آپ کو ایسا کوئی اسپائسی وکٹ مل جائے, جو کہ ہو جاتا ہے سری لنکا میں, کہ آپ کو کہ ادھر میں 4 فاسٹ بالر, 3 جو میں باقی سلاٹس رہ گئی جو میں کہہ رہا تھا وہ آپ فاسٹ بالر کھلا لو, 4 کے فاسٹ بالر آ گئے اور آپ کے پاس پھر بھی 2 اسپنرز کی آپشن آ گئی. ویری ریئر. یہاں آپ کہو کہ میں 1 فاسٹ بالر کھلا لوں گا فہیم کے ساتھ اینڈ دین آئی ول پیک دی ہول لائن اپ ود اسپنرز. نہیں آپ کا کمبینیشن بڑا اچھا بنتا ہے. 3 جہاں تک آپ کے اسپنرز کی بات ہوتی ہے, عثمان طارق, سفیان, ابرار, and if you're putting Shadi in that equation with, obviously you can't miss out Nawaz. Very difficult to he's one of the fit first names. everyone. You can't fit all of مشکل ہے, them. مشکل ہے. It's either you will take Usman Tariq or Sufyan Muqeem, and right now آپ اگر سری لنکا میں عثمان طارق کو لے کے گئے اور لگا کہ تو پھر عثمان طارق ہی جائے گا. ابھی ریسنٹ ہم نے انہی کو دیکھا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ, سفیان حکیم تو ابھی ہیں بھی نہیں ٹیم کے اندر, تو موسٹ لائکلی اٹ از لوکنگ لائک عثمان طارق. اچھا, بہت سی دیکھیں T20 کرکٹ میں آپ کے اگر 3 فاسٹ بالر کھیلیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں 12 اوور تو وہ کریں گے, باقی رہ جائیں گے 8 اوور. 8 اوور میں اگر آپ نے 3 اسپنر کھلا دیا یا 4 اسپنر, یا بیچ میں کیونکہ وہ بھی کرتا ہے ہمارا لیفٹی, کیا نام ہے اس کا, وہ کرتا ہے, اس کے بعد پھر نواز, سیم کرتا ہے, پھر نواز آپ کے بالنگ کرتا ہے. یہ دونوں بیٹرز ہیں, یہ بھی بالنگ کرتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس آپشن جو ہے نا وہ ایک بیٹسمین بڑھا سکتے ہیں یا ایک بالر بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی 2 بالنگ کرتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس آپشن جو ہے چانس سے 5 اسپنرس کی بن جاتی ہے. اور اگر آپ 3 فاسٹ بالر کھلاتے ہیں, میرے خیال سے 2 فاسٹ بالر, ایک فہیم T20 میں ناٹ بیڈ آپشن. اگر وہ نیو بال کے ساتھ پاور پلے میں 1 سے 2 اوور کرتا ہے, کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اس ٹیم کے ساتھ دیکھیں وہ بھی چوائس اچھی ہے, کیونکہ وہ بھی بال بڑے کنٹرول سے کرتا ہے, اس کے پاس ویریشن ہے, وہ سلو بال کرتا ہے, وہ اس کے پاس ویریشن ہے, وہ T20 کرکٹ میں بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. اور جہاں پہ دیٹ اس کا ریورس سوئنگ بھی ہوتا ہے, پرانا بال. اور وہ 17 میچز میں نا ڈگ آؤٹ میں بیٹھا رہا, جب وہ ٹیم کا پارٹ بھی بنا, وہی بات ہے تو نا کہ آپ جب آپ پلان دیکھیں, دنیا ٹیمیں جب بناتی ہے, آپ ماشاءاللہ خود انٹرنیشنل کرکٹر ہیں, جب آپ پلان بناتے ہیں تو آپ کسی بڑے ایونٹ کی پریپریشن ایٹ لیسٹ 10-12 منتھ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ تو ہم جو باتیں ابھی کر رہے ہیں, یہ تو آپ کو پریپریشن کا آئیڈیا ہی نہیں نا, اور کلیئرٹی نہیں مل رہی. کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں وسیم جونیئر, تو میرا نہیں خیال ہو سکتا آپ کا, آپ جائیں گے حارث روف کے ساتھ جس پہ آپ نے اتنا انویسٹ کیا ہے. جو پہلا کوسچن تھا آپ کا کہ حارث روف کے اوپر جو لوگوں کا بھی ایک گلہ ہے کہ آپ سیریز سے تو جتواتے ہیں, میچز جتواتے ہیں, ہی از اے میچ ونر, بٹ وہ ایونٹ ونر نہیں ہے. جب ٹورنامنٹ آتا ہے, فائنل, سیمی فائنل, بڑے میچ میں ایک بڑی لمبی ایک پریسیڈنٹ بن چکا ان کا. اب یہ دس از دا ٹائم کہ یہ سارے ایک سٹیپ آگے آئیں. شاہین بھی ہے, حارث بھی ہے, بابر بھی ہے, یہ تینوں ہمارے پاکستان کے ٹاپ نوچ کے سپر سٹار ہیں. تو ان کی اوپر اونس آتا ہے کہ اب یہ ایسے بڑے میچ کے اوپر ایونٹ کے اندر نسیم کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا؟ نسیم میرا خیال ہے کہ ہونا تو چاہیے نیو بال کے ساتھ بھی, لیکن اگین آپ مائنڈ سیٹ دیکھتے ہو نا اپنی ٹیم کا, اپنی مینجمنٹ کا, کہ وہ اس کو کیری نہیں کر رہے. حسن, ڈو یو تھنک نسیم شاہ has sort of along the years تھوڑا سا ان کی پوٹینشیل جتنی تھی, he has probably not quite lived up to the potential جو کہ ہم ان کی انیشلی دیکھ رہے تھے. اگین
ایک ایسے پلیئر ہے اتنا ابھی جتنا چھوٹا کریئر ابھی ان کا گزرا ہے, بہت ساری بیک ٹو بیک انجریز کا وہ شکار رہے ہیں. سو انفارچونیٹ that he is so injury prone, but despite that he has made regular comebacks and he looks fit as of today. What do you think Naseem Shah has to offer? Do you think there's still something missing? I think he is a very gritty character, Naseem, क्योंकि उनकी आप जर्नी देख लीजिए, वो बड़ी जल्दी एक टेप बॉल क्रिकेटर रेड बॉल क्रिकेट में आता है और बड़ी जल्दी पिक हो जाता है पाकिस्तान के लिए और परफॉर्म करता चला जाता है, इंटरनेशनल स्टेज पे आ जाता है, एंड ही डील्स विद दोज इंजरीज. और अभी भी हम नसीम के ऐसे हमने नसीम के ऐसे स्पेल देखे हुए हैं, वो आप फाइनल याद कीजिए इंग्लैंड के खिलाफ एट दी MCG, जब उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की और वो कम बैक किया पाकिस्तान ने उस फाइनल में, वी नैरोली लॉस्ट दैट इन दी एंड. तो आपको लगता है कि आप जिस तरह उसके नहीं पीक देख चुके हो, हालांकि नसीम के पीक ईयर्स आने वाले हैं. Having said that, I feel like Naseem is still getting back to where his peak was, and he will surpass it, but seems like it's taking time for him to get there. And Right. sometimes we want to rush that, and he himself wants to rush it, but seems to be taking a bit of time. मेरे ज़हन में भी यही सवाल रह गया था कि अगर आपकी टीम में आप सलमान मिर्ज़ा, शहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर और नसीम शाह अगर आप लेके जा रहे हो, तो then are you missing out on Haris Rauf? And where does he fit in? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि 6 मैचेस ही अब रह गए हैं, so we don't really have a lot of time. या और आई थिंक ये भी कहना बहुत अनफेयर है हारिस रऊफ के साथ कि वो, आई नो जिस तरह अभी आपने बात की कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो टूर्नामेंट विनर नहीं है, भाई टूर्नामेंट विनर है, टूर्नामेंट ऑब्वियसली विन नहीं किया उन्होंने. यही आपने कहा ना. आई थिंक इट्स अ वेरी अनफेयर स्टेटमेंट कि आप एक इंडिविजुअल को अगर ये आप कह रहे हो ना, यू फेल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ टीम स्पोर्ट. टीम स्पोर्ट देखें, जब आपके ऊपर I know. we have seen वकार यूनुस, वसीम अकरम, we have seen शोएब अख्तर स्पेल. I'm saying this to the people जिनको आपने रेफरेंस किया है. I think it's very unfair comment. This is my comment. This is not unfair. ये तो मेरा स्टांस अच्छा, आपका स्टांस है. मेरा स्टांस है, आपका स्टांस को मैं अनफेयर नहीं बोलूंगा ना. This is my stance. मेरा ओपिनियन है. I respect your opinion. You should respect my opinion. I respect your opinion. अनफेयर ना बोले उसको प्लीज. आप देखें, अगर हारिस रऊफ अगर 50 एशिया कप का फाइनल इंडिया के साथ हो रहा है, बाकी 4 बॉलर 100 खा रहे हैं. आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता. You do understand that. डिसएग्री तो आप करिए, मुझे उससे इश्यू नहीं है. That is why I'm saying why I'm saying this is unfair. कि जब आप सीनियर होते हैं, जब आप बड़े टॉप Let me finish. you should have you have given such spells कि आप पाकिस्तान को मैचेस And I think ये अब फ्यूचर में हम इस कॉन्वर्सेशन को दोबारा से भी रिविजिट करेंगे when we have more time, but of course I understand जो इरफान कहना चाह रहे थे. और देखिए ऑप्शन तो बहुत सी है पाकिस्तान के पास. देखिए क्रंच मोमेंट्स पे ना, क्रंच मोमेंट्स पे ये हुआ है, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है कि हारिस की परफॉर्मेंस लैक हुई है क्रंच मोमेंट्स पे, लेकिन उस क्रंच मोमेंट्स तक आते तक भी हारिस के उस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंसेस रही है आपको वो भी रिव्यू करने चाहिए. तो यही तो उन बड़े मैचेस तक वो हमें लेकर आया है. और जाहिर है जब रन्स इनफ ऑन द बोर्ड नहीं है, अगर हम लास्ट भी एशिया कप का भी एग्जांपल देखें तो अगेन वही बात है कि जितनी भी बॉलर्स कोशिश कर ले, एंड में जो है वो विलियनाइज जो है शायद बॉलर्स ही होते हैं. इवन दो ऑफ कोर्स बैटिंग में भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हमें एड्रेस करने हैं, बट हाँ थोड़ा सा जो है वो मैच्योरिटी का आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि शायद अब हम एक्सपेक्ट करते हैं जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो जिम्मेदारी. आप लार्जर देन लाइफ उसी को कहेंगे ना, लेजेंड किसी को कहेंगे. इंजमाम को, वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, खान साहब को क्यों आज भी याद किया जाता है, शोएब अख्तर को क्यों कहते हैं कि आपकी हिस्ट्री, आपको लोग लेगेसी तभी बनती है जब ऐसे क्रंच मोमेंट के ऊपर आके आप अपनी कंट्री को विक्ट्री दिलवाते हैं. मिचेल स्टार्क का क्यों नाम लिया जा रहा है? कौन सी ग्लोबल ट्रॉफी जीते? वर्ल्ड कप आपको 92 का उसने जिताया, सेमीफाइनल उसने आके जिताया, फाइनल में उसने परफॉर्म किया. मोहम्मद यूसुफ ने कई आपको टूर्नामेंट जिताए हैं, कई कौन आप सी ग्लोबल ट्रॉफी? शारजा कप आप कई देख लें. ग्लोबल ट्रॉफी देखिए बात इस पे खत्म करते हैं. देखें जब ये हम क्यों इस पे डिबेट करें कि वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, शाहीन की क्यों बात करें. देखिए जब स्कोर बोर्ड पे इतने रन्स ही ना होंगे, न्यू बॉल के साथ ये रन्स खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं सारा ध्यान इन बॉलर्स की तरफ चला जाता है. तो कहीं ना कहीं बैटिंग को भी उस तरह के रन्स करने चाहिए कि इक्वल एंड बैलेंस रहे. देखें अगर रन्स थोड़े करेंगे तो न्यू बॉल के साथ आपको पता है कि दूसरी टीम आएगी वो एकदम जो है वो जो डोमिनेट कर देती है. करूंगा लास्ट पॉइंट ये है कि आप पूरा साल परफॉर्म करते रहें, किसी बड़े इवेंट के फाइनल में आए, वो आपकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम हार जाए,
آپ کہیں جی میں نے تو بڑا اچھا پورا سال کیا تھا, فائنل میں میری رسپانسبلٹی نہیں. چلیں ڈیبیٹیبل ہے, یہاں پہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. لیٹس اگری ٹو ڈس ایگری اینڈ موو آن. آئی تھنک بہت ساری پرفارمنسز ہیں ہمارے پلیئرس کی دیٹ آر ورتھ ریمبرنگ, بٹ اگین دی آل امپورٹنٹ T20 ورلڈ کپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. وی آر یٹ ٹو سی واٹ دا فائنل اسکواڈ لکس لائک, بٹ مور اور لیس جو ابھی اگلے 2 سیریز میں سری لنکا اور آسٹریلیا کے اگینسٹ کھیلیں گے وہی لڑکے جو ہیں آگے they will make up the Pakistan squad. Gentlemen, thank you so much for your time and analysis. Really appreciate it. And of course, آپ لوگوں کا بہت شکریہ for tuning in once again and watching Sports Tonight. Next Monday is going to be our 150th episode and I am so excited کیونکہ اب ہم اس کا build up شروع کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ of course share کی ہے. 150 episodes کی جرنی ہماری ختم ہونے والی ہے, so please make sure that you join us once again next week. اور اس کے علاوہ of course ہم کل بھی آپ کے ساتھ ضرور ہم لائیو ہوں گے PTV اسپورٹس پہ ڈسکسنگ فٹ بال. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اسپورٹس ٹو نائٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. گڈ نائٹ.